سرزمین سعدی اقبال کا حسین امتزاج۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آج دوپہر کراچی پہنچیں گے۔ شہر بھر میں فارسی اور انگریزی زبان میں تہنیتی بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے۔ ایرانی صدر کی آمد پر ضلع جنوبی کی 3 شاہراہیں بند رہیں گی۔ 7 روز کے لیے ڈرون اڑانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دو قلب و ایک جاں، ایران پاکستان۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ کراچی کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ دورے کے دوران ایرانی صدر مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ سے ملیں گے۔ ایرانی صدر کے آمد پر منگل کو کراچی میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ صوبائی سیکریٹریٹ میں بھی عام تعطیل ہوگی۔ ایرانی صدر کی آمد سے قبل شہر میں تہنیتی بینرز فارسی اور انگریزی زبان میں لگائے گئے ہیں۔ ادھر ایرانی صدر کے دورے کے موقع پر ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا اعلان کر دیا۔ ضلع جنوبی کی 3 شاہراہیں بند رہیں گی۔ میٹروپول سے PIDC جانے والا کلب روڈ مکمل بند رہے گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے والا ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ بھی 23 اپریل کو بند رہے گا۔ کلفٹن سے آنے والا ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ سے PIDC کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایرانی صدر کے دورے کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے۔ سرمایہ کاروں نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ایرانی صدر کی کراچی آمد پر پاکستان ریلوے نے بھی احسن اقدام اٹھایا۔ مسافروں کی سہولت کے لیے ڈگ روڈ اور لانڈی اسٹیشن پر اسٹاپ بنا دیا۔ اندرون ملک جانے والی ٹرینیں ڈگ روڈ اور لانڈی اسٹیشن پر 2 منٹ کے لیے رکیں گی۔ دوسری جانب سیکیورٹی کے پیش نظر کمشنر کراچی نے 7 روز کے لیے ڈرون اڑانے پر پابندی عائد کر دی۔ شہر میں 22 اپریل سے 28 اپریل تک شہر بھر میں ڈرون اڑانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ کراچی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، شارع فیصل کو ٹریفک کے لیے بند کیا جائے گا۔ ریڈ زون بھی مکمل طور پر عام ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندے معراج اختر جو کہ شارع فیصل پر اس وقت موجود ہیں۔ معراج بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، ٹریفک کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل غیر ملکی معزز مہمانوں کی آمد کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے جو ہے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں کراچی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے۔ میں اس وقت موجود ہوں شارع فیصل پہ بلوچ کالونی برج کے اوپر۔ تو پہلے تو یہ برج کھلے ہوئے تھے اور شارع فیصل پہ اکا دکا گاڑیاں میں نظر آ رہی تھیں، لیکن جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو ہے وہ جتنے بھی برجز کنیکٹ کرتے ہیں شارع فیصل کو ان کو کنٹینرز لگا کے جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی نفری وہاں پر بٹھا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شارع فیصل کی جو ذیلی سڑکیں اور ذیلی گلیاں جو کہ شارع فیصل کو ٹچ کرتی تھی، کنیکٹ ہوتی تھی، وہاں پر بھی کنٹینرز اور مختلف گاڑیاں کھڑی کر کے ان راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ کل ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ دوپہر کو تقریباً 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو ہے وہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بالکل معطل رہے گی شارع فیصل پہ۔ تو اس کے انتظامات تھے اور سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی جو ہے اس کے اعلانات کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہری کافی تعداد میں نکلے ہوئے ہیں اور اپنے لیے راستے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن شارع فیصل بالکل سیلڈ ہے اور پولیس اور رینجرز کی نفری یہاں پر ہمیں ہر جگہ پہ موجود نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ کراچی پولیس چیف کی جانب سے بھی خاص انتظامات کیے گئے تھے، جن میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی ڈرون جو ہے پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اس پر بھی پابندی ہے اڑانے پر تقریباً 1 ہفتے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شارع فیصل جو ہے وہ مکمل طور پر عام ٹریفک کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے یعنی کہ 5 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے، وہ بند رہے گی۔ اس کے ساتھ اگر ہم جوائن کریں احمد جناح روڈ کا ایریا ہے، احمد جناح روڈ جو کہ گرو مندر چوک سے لے کے گارڈن چوک تک دونوں ٹریکس جو ہیں وہ اس کے مکمل طور پر بند رہیں گے۔ ساتھ ساتھ جو ریڈ زون کا ایریا ہے میٹروپول سے جو شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا جو کوٹ روڈ ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ ہے، کلفٹن کا ایریا ہے، صدر کا ایریا ہے، تو ریڈ زون جو ہے وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ عام ٹریفک کے لیے بند ہے شام 5 بجے تک۔ اس کے بعد پھر یہ لائحہ عمل طے کریں گے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ ٹریفک کو کب کھولا جائے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے شہریوں کو پہلے سے وارن کر دیا گیا تھا اور اس میں انہوں نے ان کو متبادل راستے جو ہے وہ بھی بتا دیے تھے۔ تو اس طرح جس نے بھی اگر جو ہے صدر یا گرو مندر کی جانب سفر کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا تکلیف ہوگی، لیکن اس کو گارڈن اور اس کے بیک سائڈ سے راستہ دیا گیا کہ وہ وہاں سے اپنے سفر کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایئرپورٹ جانا چاہتے ہیں شہر کی جانب سے، ان کو بھی گلستان جوہر اور اس کے اطراف کے جو یونیورسٹی روڈ ہے یہاں سے راستہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لیاری ایکسپریس وے جو ہے وہ آج بہت زیادہ یوز ہوگی، کیونکہ لیاری ایکسپریس وے کے جو دونوں روٹ ہیں ان کو بھی کھولا ہوا ہے
تاکہ لوگ دیر سے صحیح یا تکلیف سے صحیح لیکن اپنا سفر مکمل کر سکیں. بہرحال سچویشن ابھی جو یہاں کراچی میں اس وقت شارع فیصل پر موجود ہوں, بلوچ کالونی برج پہ, تو پولیس کی نفری ہمیں نظر آ رہی ہے اور شارع فیصل پہ ابھی ہلکی پھلکی ٹریفک بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہ مکمل طور پر بند کر دی جائے گی. اور جتنے بھی کنیکٹنگ پل ہیں شارع فیصل پہ ایئرپورٹ سے لے کے ریڈ زون تک, ان کو بھی کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا ہے, اور جتنی بھی ذیلی سڑکیں اور گلیاں ہیں ان کو بھی کنٹینرز اور مختلف گاڑیاں کھڑی کر کے جو ہے بند کر دیا گیا ہے تاکہ عام لوگ جو ہے وہ شارع فیصل پر نہ آ سکیں. جی مہمان صدر کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں. شارع فیصل کو ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دیا جائے گا اب سے کچھ دیر بعد, اور بتایا جا رہا ہے کہ شارع فیصل کے دونوں ٹریکس کو دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک بند رکھا جائے گا. معراج ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے. گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ ایرانی صدر کا استقبال بھی کریں گے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مزار قائد پر بھی ہانسی دیں گے. تفصیلات جان لیتے ہیں. خورشید رحمانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید بتائیے گا آج ان کی کیا مصروفیات ہوں گی؟ دیکھیں جی, اس وقت ہم گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں. آج اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آج کراچی پہنچیں گے. کراچی پہنچنے کے بعد گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ ان کا استقبال کریں گے. اس کے بعد جو اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ہیں وہ مزار قائد جائیں گے اور وہاں پر وہ مزار قائد پر حاضری دیں گے, فاتحہ خوانی کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ مہمانوں کی جو کتاب ہے اس میں تاثرات قلم بند کریں گے. اس کے بعد صدر ایران کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی گئی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. ان کو کراچی یونیورسٹی اعزازی ڈگری سے جو ہے وہ نوازے گی. یہ تقریب بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان سے بھی ملاقات کریں گے, اور جو کراچی کا جو معاشی ہب ہے, پاکستان کا معاشی ہب کراچی ہے, اس کے حوالے سے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم ملاقاتیں ایران کے صدر سے متوقع ہیں, اور جو تجارتی امور کے اوپر جو ہے وہ ان سے سراسر گفتگو بھی کی جائے گی, اور دیگر جو منصوبے ہیں توانائی کے بحران کے حوالے سے, اس کے علاوہ گیس کے بحران کے حوالے سے, وہ ان سے اس حوالے سے جو کراچی کی جو تجارتی برادری ہے وہ ان سے بالمشافہ ملاقات بھی کرے گی. اس کے علاوہ جو خاتون اول ہیں ایرانی صدر کی جو اہلیہ ہیں ان کے اعزاز میں بھی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی میں ایک تقریب رکھی گئی ہے. وہاں پر ان کے اعزاز میں تقریب رکھی گئی, وہ اس کی صدارت کریں گی. اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں بھی آج اس چیز کا اہتمام کیا گیا کہ صدر ایران جو ہے وہ یہاں پر مختلف وفود سے ملاقات بھی کریں گے, اور خصوصاً جو کراچی میں جو کراچی کا جو معاشی معاملہ ہے, توانائی بحران کا معاملہ ہے, گیس کے بحران کا معاملہ ہے, وہ اس حوالے سے بڑی اہم ملاقاتیں ہوں گی. ایرانی صدر کی آمد کے حوالے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں تہنیتی بینرز جو ہیں وہ لگائے. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے, اس وقت بھی یہاں پر بینرز آویزہ کیے گئے ہیں جو ایرانی صدر کے استقبال اور پاک ایران دوستی کے حوالے سے اس پر آویزہ پیغام جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. پاکستان ایران کی دوستی جو ہے وہ دیرینہ ہے. اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر, مختلف حلقے اور مختلف جو اکنامک زون کو جو اس پر فوقیت دیتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, وہ اس دورے کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں کہ پاک ایران دوستی جو ہے وہ اب مزید مستحکم ہوگی, اور اس کے حوالے سے جو دیگر جو منصوبے ہیں اس پر بھی خاصی پیش رفت سامنے آئے گی. جی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا خورشید آپ بھی, اور شارع فیصل پر معراج اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا بتائیے گا خورشید رحمانی کہ آج ان کی آمد کتنے بجے تک متوقع ہے؟ جی ان کی آمد جو ہے وہ 3 سے 5 جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اسی دوران جو ہے وہ کراچی کی جو مختلف شاہراہیں ہیں ان کو بھی بند کیا گیا ہے. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم کہہ لیں کہ جو شارع فیصل ہے وہ 3 سے 5 بجے اس کے دونوں ٹریکس جو وہ بند کیے جائیں گے, اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں ٹریکس بند کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو شہر کی مختلف شاہراہیں ہیں ان پر بھی جو ہے وہ کنٹینر لگا کر ان کو بند کیا گیا ہے, اور پولیس حکام نے متبادل جو ہے وہ روٹس پلان شہریوں کو ایک دن پہلے ہی بتا دیا ہے کہ شہری اگر سفر کرنا چاہیں تو وہ ان متبادل روٹس پر جو ہے وہ سفر کر سکیں گے. جی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آج وہ آ رہے ہیں, کون کون سے اہم ٹاپکس ہیں جن پر بات کی جائے گی, کون سے اہم فیصلے جو ہیں لیے جائیں گے؟ دیکھیں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی پاکستان آمد اور اس کے علاوہ کراچی میں آمد کو جو ماہر معیشت دان ہیں وہ اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور ہماری جن ماہرین معیشت کے امور کی ان سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کراچی خصوصاً جو مسائل ہیں اس میں توانائی کا جو بحران ہے اور جو گیس بحران ہے
इसके हवाले से और जो दीगर जो पेट्रोल के इश्यूज़ हैं जिस पर ईरानी सदर से वो बातचीत होगी और इस तरह की कई मंसूबे जो पाइपलाइन में हैं उनके ऊपर खासी सैर हासिल गुफ्तगू भी की जाने का इम्कान है और इस तरह 10 अरब से ज़ायद के जो मंसूबे हैं वो भी हतमी उसको हो सकता है प्लान की शक्ल दे दी जाए, क्योंकि कराची में गैस की किल्लत और इसके अलावा तवानाई बहरान के वाले से अगर बात की जाए तो लोड शेडिंग का मामला ये ज़ेर गौर है। और जो यहाँ के जो तिजारती जो सेक्टर्स हैं उसके जो इंडस्ट्रीज़ के मालिकान हैं तिजारती हवाले से वो भी उनसे मुलाकात करेंगे और मुमकिन है कोई ऐसी पेशरफ सामने आए, ऐसे मंसूबों के ऊपर जो है वो मुआहिदे सामने आए जो जिससे कराची समेत पूरे पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, जो तवानाई बहरान के मसाइल हैं, जो गैस के बहरान के मसाइल हैं वो हल होने के इम्कान नज़र आएंगे। जी अच्छा खुर्शीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेराज, बताइएगा कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजामात आप देख रहे हैं? हाँ देखिए जी, बिल्कुल सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है पुलिस की जानिब से इंतजाम शुरू कर दिए गए थे। ईस्ट जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन के भी अफसरान इसमें शामिल हैं जिन्होंने पूरी प्लानिंग की। उसके बाद फ़ैसला ये किया गया कि शार फैसल जो है उसको जो है कुछ मखसूस वक्त के लिए जो है ब्लॉक किया जाए, तो उसके लिए इंतजाम किए गए। कंटेनर्स और दीगर सामान जो है वो गुज़िश्ता दिन से ही पहुँचना शुरू हो गया था शार फैसल पर, कि एयरपोर्ट से लेकर जो है मेट्रोपोल तक और मेट्रोपोल से रेड जोन तक जितनी भी ज़िली जो सड़कें और गलियां जो कि कनेक्ट करती थी आगे शार फैसल को, वहाँ रुकावटें खड़ी की गई और लोगों को पहले से अवेयर कर दिया गया था। सोशल मीडिया पे मैसेजेस चला दिए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैसेजेस चला दिए गए थे ताकि उनको परेशानी ना हो, और आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया था। साथ साथ ही कल से रूटीन शुरू हुई। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है शार फैसल पर मौजूद है और अब से क्योंकि ये वक्त दिया गया था तकरीबन 2 से 3 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त था जिसमें शार फैसल को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया जाना था, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ वक्त पहले ही यानी कि 12 बजे से ही जो है जो भी कनेक्टिंग ब्रिजेस थे और पुल थे शार फैसल पर उन तमाम को बंद कर दिया गया है। और अब जो है मुकम्मल तौर पर जो पुलिस की बटालियंस हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। लेडी पुलिस भी हमें नज़र आ रही है, दीगर एहलकार भी जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो गश्त भी कर रहे हैं और साथ साथ में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है उनकी ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। इसके साथ साथ जितने भी शार फैसल से रिलेटेड जो दोनों अतराफ़ में जो इमारतें हैं वहाँ पर भी स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं कि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत से हाल से जो है वो फौरी तौर पर निपटा जा सके। ये तो शार फैसल का मामला था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि गुरु मंदिर से लेकर गार्डन चौक तक जो एमएचएन रोड के दोनों ट्रैक्स हैं उनको भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। वहाँ भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है और उस पूरे एरिया में यानी कि गार्डन चौक से लेकर गुरु मंदिर चौक तक जितनी भी ज़ेली सड़कें और गलियाँ कनेक्ट करती हैं एमएचएन रोड को, तो उनको भी इसी तरह सील किया गया है। साथ साथ में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड है जो कि रेड जोन में है, मेट्रोपोल के अतराफ़ का पूरा इलाका है, कोर्ट रोड है, तो यहाँ जो है पूरा एरिया रेड जोन का ये भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। रेड जोन का एरिया जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखने में आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, खुर्शीद रहमानी गवर्नर हाउस के बाहर और मेराज अख्तर शार फैसल से हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची के शहरियों ने ईरानी सदर की आमद को खुशाइन करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि काफ़ी अरसे बाद किसी इस्लामिक मुल्क के सरबरा कराची आ रहे हैं। ईरानी सदर के आने से पाकिस्तान की मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और एक ज़माने के बाद इनकी आमद हो रही है। हम इनकी आमद पर इन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं और इनका आना नेक शगुन समझते हैं। इससे हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी मईशत में भी बेहतरी आएगी। भाई माशाल्लाह उनका आना खुश आइंद है, आना चाहिए, बरादर मुल्क है हमारा, ताकि ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों। उनसे मतलब हमारे वैसे भी रवाबित हैं, उनका आना नेक शगुन भी है और इससे है कि मईशत में और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का सबब बनेगा। अच्छी बात है, कोई दूसरे मुल्क के लोग आएँ वहाँ पर और ताल्लुकात बेहतर हों और पाकिस्तान तरक्की। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 71,846 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। एमडी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट फरूख खान का कहना है मईशत के लिए बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत को तजवीज़ दी है कि बजट में मार्केट पर मजीद कोई नया टैक्स ना लगाए ताकि स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार रहे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना से।
जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है। हमने देखा मार्केट ने जहां गुज़िश्ता रोज़ अपनी रिकॉर्ड हाई बनाया था, आज भी मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है। इस वक्त मेरे साथ CEO स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। ज़रा उनसे जानते हैं कि मार्केट की मज़ीद आगे अगर बजट के अंदर कुछ टैक्सेस लग जाते हैं तो क्या मार्केट पे कोई नेगेटिव असर आएगा? सर, आगे बजट अब आने के करीब है, आपसे चीज़ें बहुत सारी लोगों से पूछी जाती हैं, क्या समझते हैं अगर कोई टैक्स, सुपर टैक्स, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है लग के, तो क्या कुछ मार्केट के ऊपर नेगेटिव होगी? जी देखिए, आई थिंक दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं अगले महीने 2 महीने में। एक तो जो IMF के साथ FM ने वाशिंगटन में मीटिंग्स की, उन्होंने इंडिकेट किया कि मई में IMF की टीम आएगी, तो वो नेगोशिएशंस किस तरह आगे बढ़ती हैं और फिर उनका इम्पैक्ट आई एम श्योर बजट के अंदर भी आएगा। हमने अपने बजटरी मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं और हमने उसमें यही कहा है जो हमने पहले भी कहा था कि स्टॉक मार्केट को कोई सब्सिडीज़, कोई कंसेशंस नहीं चाहिए। हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, एक इफ़ेक्टिव और रैशनल टैक्स स्ट्रक्चर चाहिए और माशाल्लाह इंशाल्लाह जो है मार्केट विल परफॉर्म। और उन मेजर्स से, क्योंकि हमारी मार्केट जो है बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, तो उससे टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा जिस तरह कैपिटल मार्केट्स ग्रो करेंगी। मार्केट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि गवर्नमेंट को बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस करनी है। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं हमारी इकॉनमी को जो फेस करती है हमारी इकॉनमी, और मार्केट पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। जब फाइनेंस मिनिस्टर स्टॉक एक्सचेंज भी आए थे तो हमने ये कहा था कि मार्केट फुली सपोर्ट करती है कि आप ये टफ मेजर्स लें जो कि इमीडिएटली शायद मुश्किल लगें मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आप समझते हैं कि अगर जो मौजूदा टैक्सेस हैं अगर उसमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, आप समझते हैं कि बस इसी पे अगर सस्टेन कर जाएं सारी चीज़ें तो आपकी मार्केट को सपोर्टिव होगी? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है रास्ता दिखाए कि किस तरह हम लोग टैक्स बेस को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि टैक्स बेस को इंक्रीज़ करने के अगर स्टेप्स आज लेंगे तो वो 1-2 साल में उनका रिजल्ट आएगा और उसी से आप सुपर टैक्स और चीज़ें कम कर सकेंगे। मगर अगर वो स्टेप्स नहीं लिए गए तो फिर ये हाई टैक्सेस तो कभी ख़त्म नहीं हो सकेंगे। जैसे फ़ारूक साहब का यही बताना है कि आने वाले बजट में जो प्रपोजल दिए गए हैं उन्होंने कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमें मज़ीद कोई रिलीफ नहीं चाहिए। मार्केट को अगर और मज़ीद आगे लेके जाना है तो टैक्सेस जो हैं उसके टैक्स नेट को बढ़ाने, ताकि लोगों के ऊपर जो सुपर टैक्सेस ख़ास करके जो स्टॉक मार्केट में लगे हुए तो उससे अगर कमी आएगी तो उसकी सबसे बड़ी अहम वजह जो है वो आप टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, तभी उससे जो है सुपर टैक्स में कमी आ सकती है। जी नाज़रीन, मार्च 2024 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बुलंद सतह पर पहुंच गई। मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 52% इजाफे से 25 करोड़ 80 लाख डॉलर रही। और मार्च 23 के मुकाबले में मार्च 24 में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी 601% इजाफे से 1.90 करोड़ डॉलर रही। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक का कहता है कि मार्च 2024 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी जून 2022 की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 52% का बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर 25 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि रवा माली साल 9 माह में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 10% कमी से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रही है। और सबसे अहम बात कि मार्च 23 के मुकाबले मार्च 24 में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी 601% बड़े इजाफे से 1 करोड़ 90 लाख डॉलर रही है। और रवा माली साल 9 माह में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी जो है 6 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में स्टॉक मार्केट से जो है 40 लाख डॉलर का इनखला देखा गया था। माइनिंग का कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्च 23 से मार्च 24 में निजी गैर मुल्की सरमायाकारी 4% इजाफे से 27 करोड़ 70 लाख डॉलर पर पहुंच गई। और इसके साथ मजमूई बैरूनी गैर मुल्की सरमायाकारी 525% इजाफे से 1 अरब 26 करोड़ डॉलर 9 माह में रही है, जो कि मुल्की मईशत के लिए अच्छा साइज है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कराची का कचरा शहर से बाहर फेंकने के बजाय मली नदी में डाला जाने लगा। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों कमिश्नर कराची की जानिब से 8 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। इसके अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ, जानते हैं मोहम्मद हमाद से जो मलीर नदी पर मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा। आज देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता दिनों मलीर नदी में कचरा जो है फेंकने जाने का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और जिस पे ये सख्ती से इक़दाम किए गए थे कि मलीर नदी पे जो है कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी जो है वो लिया जाए।
हम इस वक्त मलिर नदी पे मौजूद है। मेरे कैमरामैन जो है फरहान थोड़े से आपको नदी के पहले मनाजिर दिखा दें कि ये मनाजिर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मलिर नदी जो कि गुजर रही है और साथ साथ जो है वो एक्सप्रेस वे मलिर एक्सप्रेस वे भी तामीर हो रहा है। तो इस नदी की तरफ अगर जूम करके मेरे कैमरामैन दिखाए तो आप देख रहे हैं कि कचरा यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। तो पिछले दिनों जो है यहाँ पर कचरा फेंकने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से एक कमेटी बनाई गई, असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी, जिस पर जो है वो अमल दरामद जो है वो कराया जाएगा कि सख्ती से कि कोई यहाँ पर कचरा ना फेंका जाए। लेकिन हमने देखा कि कोई जो है यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई इंतजाम यहाँ पर मौजूद हो। कचरा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के इलाके के जो है शहरी मौजूद हैं जो यही रिहाइश पजीर हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर आप रहते हैं, मलिर नदी एक बड़ी नदी है जो कि आकर गुजर रही है। बरसात अगर हो जाए, कचरे की मिकदार यहाँ पर अगर ज़्यादा हो तो इससे क्या नुकसान पैदा हो सकते हैं? कचरा यहाँ जो ना गाड़ी आके फेंकती हैं, लोग भी फेंकते हैं, बहुत कचरा जमा हो जाता है। अगर कचरा जमा होगा तो इसकी वजह से ज़ाहिर है बारिश होगी, पानी आएगा तो नाले बन जाएंगे, तो ओवरफुल होगा। ओवरफुल होने की वजह से पानी फिर दायरा इलाकों की तरफ भी आएगा। अब ये अंडर चेयर बढ़ रहा है और इसमें 2 मिशन होगा। अगर सब कचरा डालेगा तो सब पानी कहाँ जाएगा? अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे कहा कि गाड़ियाँ आके फेंकती हो, तो गाड़ियाँ क्या सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ यहाँ पर आती है, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की, या केएमसी की गाड़ी? केएमसी की गाड़ियाँ पुल के नीचे आके फेंकती हैं कचरा। क्योंकि मलिर नदी से होता हुआ ये सारा जो एवरेज का पानी है ये फिर लियारी नदी में जाकर भी गिरता है। तो इलाका मकीन यही कहते हैं कि इंतज़ामिया को जो है फौरी इंतजाम करने चाहिए और लोगों को जो है इलाका मकीनों को जो है वो कचरा फेंकने से जो है यहाँ पर रोका जाए। जी, 120 किलोमीटर तवील मलिर नदी में कचरा और फुजला दाखिल होने का अमल बरसों से जारी, जिसे लाख जतन के बावजूद रोका नहीं जा सका। आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मलिर नदी का शुमार कराची की उन कुदरती बरसाती पानी की निकासी की गुजरगाहों में होता है जो कि शहर भर में मौजूद है। मलिर नदी का आगाज केरथर के पहाड़ों से होता है और बहिरा अरब में जाकर ये मिलती है। 120 किलोमीटर इसकी तवालत है और दिलचस्प बात यह है कि जब खुश्क मौसम होता है तो इसकी तवालत जो है वो सुकड़ कर 95 किलोमीटर रह जाती है, जबकि दौरान बरसात इसकी जो लेंथ है उसमें इजाफा होता है, 150 किलोमीटर तक ये तवील हो जाती है। बरसा बरस से ये जो है मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। आज से 3 दहाइयों कबल की अगर बात की जाए तो साफ सुथरा इसमें पानी हुआ करता था जो कि पीने के काबिल तक होता था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें मुख्तलिफ मकामात से कचरा, मुख्तलिफ फजला और इसके इतराफ में आबादी का बढ़ता हुआ दबाव, इसके जो मुख्तलिफ बंद हैं वो तजावुज़ात के नरगे में आ चुके हैं, जिसके नतीजे में सफाई सुथराई का निज़ाम दरम बरम हुआ। लोगों ने यहाँ कचरा फेंकना शुरू कर दिया, जबकि इसके बंद के साथ साथ इसमें जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर भैंसों के बाड़े भी कायम कर दिए गए, जिनका फुजला भी जो है वो इस नदी में डाला जाने लगा। इसी तरह मुख्तलिफ सनती इलाके भी हैं जिनका फुजला जो है इस नदी में शामिल किया जाता है, जिसमें गुज़िश्ता साल जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने भी जो है सख्त बरहमी का इजहार किया था। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि 10 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ये गंदगी और गिलाजत जो है इस नदी में शामिल की जाती है। मलिर और शाह फैसल के दरमियानी इलाके से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे कि जगह जगह गार्बेज जो है इसके बंद पर मौजूद है, जबकि भैंसों के बाड़े भी कायम हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सेवरेज का पानी जो है वो लिंक कर दिया है इंतजामिया ने इस मलिर नदी से, जिसकी वजह से ये नदी जो है वो एक गंदे नाले की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। इस सिलसिले में सख्त और मौसर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि इस कुदरती नदी को जो है वो महफूज बनाया जा सके और कराची को जो बारिशों के दौरान जो तबाही होती है उस तबाही से महफूज रखा जा सके। जी, शहर के मुख्तलिफ मकामात से मलिर नदी में कचरा फेंका जा रहा है जो माहौल की तबाही का सबब बन रहा है। माहिर माहौलियात यासुर हुसैन कहते हैं कि नदी में फेंका जाने वाला इंडस्ट्री का केमिकल वेस्ट समंदर में शामिल होता है जो आबी हयात को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें शहर के मुख्तलिफ मकामात से जो है वो मलिर नदी में कचरा जो है वो फेंका जाता है और जिसके अलावा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया का जो वेस्ट है वो भी इसमें शामिल हो जाता है, जबकि ये नदी का पानी जो है वो समंदर में जाके गिरता है। इस वजह से जो है वो आबी हयात और दीगर जो हमारे माहौल है उस पर क्या असर पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो माहिर माहौलियात यासिर हुसैन दारिया साहब मौजूद है। सर, हमें बताइएगा इस चीज़ का कितना नुकसान हमारे माहौल पर हो रहा है।
جی آپ یوں سمجھیں کہ کراچی جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں ہے اور اس کا سارا کچرا جو ہے وہ اٹھایا نہیں جاتا. سو اس کچرے میں سے آپ دیکھیں کہ جو بچے وغیرہ جو پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ چنتے ہیں, گتا چنتے ہیں, لیکن یہ بھی کم چنا جاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ پلاسٹک کے علاوہ دیگر کچرا بھی سارا کا سارا ہمارے نالوں میں اور دریا میں جا رہا ہے. ملیر اور لیاری جو ہیں یہ ہمارے دریا ہیں کراچی کے. یہ جتنا آپ سمجھیں مواد اب یہ سمندر میں چلا گیا ہے نا, ایک تو یہ کہ ساری آب حیات ٹھیک ہے, پھر یہ سب پڑا ہوا ہے وہیں پہ, یعنی کوئی صاف بھی نہیں کر رہا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. اس کے بارے میں یعنی ایک طرف زمین کو نقصان ہو رہا ہے, دوسری طرف اس میں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں. لوگ بھی اس سے پریشان ہیں اور آپ کا پورٹ بھی تباہ ہو رہا ہے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ماہر ماحولیات یاسر حسین داریہ صاحب موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ویسٹ کی وجہ سے آبی حیات کو نقصان پہنچتا ہے. تو تاہم آبی حیات جو ہے وہ یہاں سے مچھلیاں بالخصوص جو ہے وہ شہر سے دور ہوتی جا رہی, سمندر سے دور ہوتی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ فشریز کی انڈسٹری خاصی متاثر ہو رہی ہے. جبکہ اس کے علاوہ اگر دیکھیں ہم تو جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارے جو پورٹس ہیں وہ بھی تباہ ہوتے جا رہے ہیں. البتہ جو ہماری نیچر ہے اس کو بھی خاصا نقصان پہنچ رہا ہے. جی انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی. کورنگی کے علاقے 32A اور 32C کی مرکزی سڑک سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر گندے پانی اور ٹوٹ پھوٹ کے باعث حادثات ہو رہے ہیں. بلدیاتی ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, درخواستیں دینے پر بھی سنوائی نہیں ہو رہی. مزید جان لیتے ہیں طاہا ملک سے. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں کورنگی میں, اور کورنگی میں ایک سڑک ہے جو کہ کورنگی 32C اور 32A کے درمیانی سڑک ہے. یہاں پر حالت اس قدر خراب ہے کہ ٹریفک کا گزرنا ناممکن سا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے درخواست کروں گا کہ میرے پس منظر میں دکھائے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت بس سے بدترین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وقت جو سڑکوں کا حال ہے یہاں پر ٹریفک کی جو روانگی ہے وہ متاثر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. بلکہ سڑک پر جو گندا پانی ہے اس کی کھڑے ہونے کی باعث جو ہے بڑے بڑے گڈھے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. یہاں پہ علاقہ مکین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے گا کہ کتنے ٹائم سے یہ صورتحال ہے اور کوئی یہاں پر کام کرنے نہیں آیا؟ بھائی 8-10 سال ہو گئے ہیں. ادھر کوئی سمجھ لو پتہ نہیں, لاوارث علاقہ ہے, لاوارث محلہ ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اس میں ساری پریشانیاں ہیں, ہمیں تکلیف ہے, یہاں بیٹھنے میں پریشان ہو گئے. ہمارا سیزن کی تباہ ہو گیا. آئے دن گٹر بھر جاتے ہیں, دیکھ کے تو سب جاتے ہیں, موویاں بناتے ہیں, کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. کوئی لین ڈالیں کچھ ڈالیں, پانی نکال کے لے جاتے ہیں, پھر وہ پانی بھر جاتا ہے دوسرے تیسرے دن. اب ہم کیا کریں, آپ لوگ کچھ کرو تو یہ کچھ ہوگا اس کا. کوئی لین ڈالیں, گٹر ڈالیں. مزید علاقہ مکین بھی جو ہے موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے گا کہ کسی کو کوئی ریکویسٹ, کوئی اپلیکیشن نہیں لکھی گئی, کوئی لیٹر لکھا گیا؟ سب کو ناظم کو بول چکے ہیں. پہلے والے ناظم کو بھی بولا تھا, MQM کے ناظم, تو وہ بھی ایسے تھے 2-3 کھلواتے ہیں. نالے سے گٹر کھلیں گے تو جب جا کے مسئلہ حل ہوگا. یہ 2-3 کھلوا کے تصویریں مووی بنا کے چلے جاتے ہیں, بولتے ہیں ہم نے گٹر کھلوا دیا. آئے دن یہاں گاڑیاں گر رہی, بائکیں گر رہی, لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. یہ روڈ ٹوٹ گیا, اس کی وجہ سے سارا گٹر لین فل بھری ہوئی روڈ کی. ہمارے ساتھ علاقہ مکین جو ہے وہ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے یہ کافی عرصے سے خراب ہے, اور یہاں پر کی جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ آتے ہیں, گٹر کو جو ہے ٹیمپریری طور پر صاف کراتے ہیں, پانی نکالتے ہیں, لیکن اس کا جو مستقل حل ہے وہ نکالا نہیں جا رہا. اور اس وقت کی جو بلدیاتی حکومت ہے وہ اس مسئلے کو حل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ان کا کہنا ہے علاقہ مکینوں کے مطابق کہ بلدیاتی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فنڈز کی جو ہے وہ فراہمی نہیں ہے, فنڈز نہیں ہیں. فنڈز اگر ہوں گے تو یہ کام کیا جائے گا. تمام تر جو باتیں ہیں یہ کی جاتی ہیں بلدیاتی حکومت کی جانب سے, بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے, جب علاقہ مکین درخواست لے کے جاتے ہیں. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی کراچی آمد سے قبل MA جناح روڈ کی قسمت جاگ اٹھی. ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ کی مرمت مکمل ہو گئی, ہر طرح صفائی کر دی گئی. آگاہ کر رہے ہیں میر کیریو. جی بالکل, ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی آمد سے قبل ہی کراچی کے MA جناح روڈ کی جو ہے صفائی کر دی گئی ہے. MA جناح روڈ کی شارع قائدین, نمائش چورنگی اور تبت سینٹر کے بیچ میں سے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس کی مرمت کر دی گئی ہے. اس کے اطراف میں جو گلیاں ہیں ان کی بھی صفائی کر دی گئی ہے. روڈ کو جو ہے سجایا گیا ہے, اور ہر طرف جو بورڈ وغیرہ بھی لگائے ہیں. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی آمد سے جو ہے ان کو جو ویلکم کرنے کے لیے شاعر قائد
قائدین पर जो है उनके बोर्ड भी लगाए गए हैं और अब की जो यहाँ की सूरत हाल है, हर तरफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो है सख्त किए गए हैं। रोड को जो है मुकम्मल तौर पर हर तरफ से बंद कर दिया गया है, कंटेनर लगाकर वहाँ पर सिक्योरिटी जो है नाफिज कर दी गई है। वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो भी वहाँ पर तैनात कर दी गई है, जबकि जो रोड की सूरत हाल है अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है और उम्मीद है कि यहाँ ये जो शाहरा कायदीन है इसकी सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी, क्योंकि एक रात कबल जो है यहाँ की सूरत हाल कुछ और थी, आज की सूरत हाल कुछ और है। जी, उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें, वसीदा सीवरेज का निज़ाम, शहर की मुतअद्दिद शाहराहें गढ़ों में तब्दील हो गई, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। आवाम ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। जगह जगह गंदगी के ढेर, बदतरीन सीवरेज का निज़ाम और हर तरफ गंदा पानी। सदर से गुलशन शहर कायद की एक ही कहानी। उर्दू बाजार से एम ए जिना रोड जाने वाली सड़क बोसीदा सीवरेज निज़ाम के तहत घरों से भर गई। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। शहरियों ने शिकवा किया कि उबलते गटरों की वजह से शाहराह तबाही के दहाने पर पहुँच गई है, जहाँ इंतजामिया तवज्जो देने को तैयार नहीं है। ये पीछे से जो है सीवरेज का पानी आ रहा था तो यहाँ जमा हो जाता था, तो उसकी वजह से ये गड्ढे पड़ गए हैं और इसमें ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर होती है और आने जाने वालों को बहुत मसला होता है। इधर राशिद मिनाज रोड पर नागन चौरंगी से गुलशन आने वाला ट्रैफिक सीवरेज के पानी से शदीद मुतासर होने लगा। सड़क पर जमा होने वाले सीवरेज के पानी को शहरियों ने इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। 4 महीनों में उन्होंने एक दफ़ा भी आके नहीं खोला। सामने उनका टाउन है और वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती इन लोगों की वो देख रहे हैं कि गटर भरा हुआ है, ये खोल नहीं लाइन। फैक्ट्री वालों को आकर परेशान कर रहे हैं कि 70,000 रुपये दे दो, 35,000 रुपये दे दो, तुम लोगों को लाइन खोल के देते। मगर ये रोड की लाइन है, ये कौन करेगा? फैक्ट्री वाले तो नहीं ये करेंगे। शहरियों ने हुकूमत और मुतालिका महकमों से मुतालबा किया है कि शहर में सीवरेज का नाक़िस निज़ाम बेहतर करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर एहसन अब्बासी के हमरा नौमान गुल, सिटी 21। प्याज की कीमतें शहरियों की आंखों में आंसू ले आई। एक्सपोर्ट पर पाबंदी कीमतों में कमी न ला सकी। प्याज 240 से 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शहरी कहते हैं कि कमिश्नर ठंडे कमरों से बाहर निकले, सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाएं। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो आसमान से बातें कर रही है। प्याज जो हर घर में लाजमी जुज़ है, उसका इस्तेमाल किया जाता है खाने पकवान में। इस हाल से बात की जाए, रमज़ान मुबारक में 280 रुपये किलो मिलने वाली प्याज कीमत कम तो ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 240 तो कहीं पर 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। रिटेलर्स का कहना है कि मंडी से माल महंगा आता है। अलबत्ता हुकूमत ने 15 अप्रैल तक प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद रिलीफ नहीं मिल सका है। आवाम क्या कहती है उनसे बात करते हैं। बताइएगा, प्याज समेत दीगर जो सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी है। कमिश्नर कराची रोजाना लिस्ट भी निकालते हैं, लेकिन अमल दरामद सिफर होता है, क्या कहें? कमिश्नर कराची लिस्ट तो निकालते हैं, लेकिन वो बैठे हुए दफ्तर में, वहाँ अमल दरामद के लिए जो उनके जो गवर्नमेंट की जो टीमें हैं वो जाके वो जांच पड़ताल करें। दूसरी बात है, ये जो हम रिटेलर हैं इनसे पूछते, वो बेचारे कहते हैं कि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, हम कहाँ से अपने पल्ले से तो नहीं देंगे, हम भी किलो किलो करके बेचते हैं। उसमें जो है ना वो किराया है, इन्वेस्टिंग के किराया, दुकान का है, बिजली का बिल है, हमारे पीछे भी जो है ना हिसाब किताब है। तो हम इनको कसूरवार ठहराए, गवर्नमेंट को ठहराए या होलसेलर को ठहराए? तो ये तो समझ में, हम तो छोटी छोटी चीज़ें लेके चले जाने वाले, तो इस वजह से। बिल्कुल, देखिए लोगों का ये कहना है कि कमिश्नर कराची की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट तो जारी कर दी जाती है, लेकिन अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। जिले इंतजामिया को मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अलबत्ता जो रिटेलर्स है उनका कहना है कि मंडी से एक्शन होना चाहिए, वहाँ पर सरकारी निगरानी पर अमल दरामद होगा, तभी आवाम को रिटेल की सतह पर रिलीफ मिलेगा। जी, खुदकुशी जिंदगी के मसाइल का हल नहीं। नौजवान ताहिर महमूद के इंतहाई कदम ने सारे ख़ानदान को अज़ियत में मुब्तला कर दिया। घरेलू परेशानियों से तंग आकर समंदर में छलांग लगाने वाले ताहिर महमूद ने वाक़े से कबल अपनी बीवी को वीडियो कॉल की थी। इस वक्त शाहज़ेब हुसैन ताहिर के वालिद के साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त साहिल पर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक नौजवान ने समंदर में कूद कर जो अपनी ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है, और उसके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर नामी शख्स है जो कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है, और क्या वाक़या पेश आया था, महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएगा कि क्या वाक़या पेश आया और अब तक इदारों की जानिब से क्या ताउन किया जा रहा है? सर, मुझे रात को 1-1:30 बजे कॉल आई कि ताहिर समंदर पे गया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं खुदकशी कर लूँगा। तो हम लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे समंदर, तो गाड़ी उसकी लॉक मिली, अंदर चाबी भी अंदर थी, पर्स भी, और
बाकी ब्रेसलेट घड़ी वगैरह उसमें मौजूद थी। हम लोग 1-1:30 बजे से 1:30-2 बजे से यहाँ कोशिश कर रहे हैं, इदारे भी हमारे साथ हैं, ताउन कर रहे हैं, लिहाजा इदारों से और कोशिश करें कि जल्दी कोई ना कोई पता चलाएं। हो सकता है कि उसने हमें डराने के लिए क्या हो, तो जहाँ भी है वापस आ जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। ये बताएगा कि कहाँ के रिहायशी हैं और कहाँ पर इनकी रिहाइश है और कहाँ से ताल्लुक़ है? पीछे रेंजार खान से है, यहाँ शाह फैसल कॉलोनी ग्रैंड डाउन और रजीमपुरा से है। ये शादीशुदा थे? शादीशुदा थे, 2 शादी थी उनकी। कितने बच्चे थे? दोनों से एक बेटी थी, एक बेटी इंतकाल कर गई है, छोटी बेगम से, पहली बेगम से है उनकी बेटी। अच्छा, ये बताएगा कोई परेशानी वगैरह तो नहीं थी? कोई परेशानी नहीं था, अपनी गाड़ी चलाता था, खुश था। जी बिल्कुल, इस वक्त जो उनके वालिद हैं महमूद साहब, वो सदमे से निढाल हैं, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उसने शायद डराने के लिए जो है ये इक़दाम उठाया है, लेकिन जो यहाँ पर मुताल्लिका इदारे हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। समंदर में लॉन्चों के ज़रिए जो है उसकी तलाश जारी है, जबकि उसकी गाड़ी में उसका सारा सामान मौजूद है। जो डूबने वाला शख्स ताहिर है, उसकी 2 बेटियाँ जबकि एक बेटी का इंतकाल हो गया है और 2 शादियाँ कर रखी हैं। ताहम यहाँ पर जो है पुलिस भी मौजूद है और जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी रखी हुई है। जी। गुलशन इकबाल में गैस लीकेज के बाइस धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जोरदार धमाका नाले में गैस भरने के बाइस हुआ। नाला शादी हॉल के दाखिली गेट पर है। वाक़े के वक्त शादी हॉल में मेहंदी की तकरीब जारी थी। यूसी काउंसलर का कहना है इंक्रोचमेंट के बाइस नाले में गैस अखराज की कोई जगह नहीं है। जावेद काइमहानी की रिपोर्ट देखते हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में रोड नाले से मुत्तसिल हॉल में मेहंदी की तकरीब के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी कि इस दौरान नाले की छत जोरदार धमाके से उड़ गई। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला पर रेस्क्यू का अमला और पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। 9 बजे 10 मिनट इत्तला मिली हमें कि धमाका हुआ है, प्रैक्टिकल सामने गाड़ी पलटी हुई है। जब यहाँ आए तो पहले हमने ये समझा कि गैस लाइन फटी है। एक गैस लाइन की तस्दीक की है, गटर लाइन में गैस भरी, उससे धमाका हुआ है। उससे 5 बजे जख्मी हुए हैं, 3 ढोल वाले और 2 कैटरिंग वाले, बाकी अल्लाह के बचा था। यूसी काउंसलर इम्तियाज हुसैन के मुताबिक धमाका बहुत ज़ोरदार था, आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। नाले पर तजावज़ात करके मुकम्मल बंद किया हुआ है, जो ज़ोरदार धमाके का सबब बना। ये जगह पूरी पैक हुई भी है नाले से, उस पर एक्स्ट्रा लाइन जो है वो सारी नाले से कवर की गई है। यहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे ये बैंक्वेट चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे आज मेहंदी का प्रोग्राम था और यहाँ पे आतिशबाजी हो रही थी। नाले की गैस और इसके साथ ये मैच हुई और ये ब्लास्ट हुआ है। जख्मियों में 3 ढोल बजाने वाले और 2 कैटरिंग सर्विस के मुलाजमीन शामिल हैं, जबकि धमाके से कई मोटरसाइकिलें नाले के अंदर जा गिरी और एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही है। कैमरामैन शेर और शरियार अली के साथ जावेद काइमखानी, सिटी 21। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में औरंगी टाउन में गैरत के नाम पर कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें औरंगी टाउन में गैरत के नाम पर कत्ल का मामला, जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। मुल्जिमान में हुसैन शाह, नईम शाह और सैयद जमान शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर की जानिब से तफ्तीश के लिए मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 25 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है मुल्जिमान का 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवाना है। पुलिस के मुताबिक जो है वो मकतूल की शनाख्त जो है सादिक पठान के नाम से हुई थी। अब मकतूल को हुसैन शाह नामी मुल्जिम ने गोली मारकर कत्ल किया। मुल्जिम ने कत्ल करने के बाद लाश को जो है पैनाफ्लेक्स में लपेट कर फेंक दिया था। मुल्जिम ने मकतूल को अपनी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे में कत्ल किया था। वाक़े का मुकदमा जो है थाना औरंगी टाउन में दर्ज किया गया था। जी। आगा खान यूनिवर्सिटी में तब की तालीम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। यूनिवर्सिटी में मेडिकल के तलबा के लिए सिमुलेटर ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, मेडिकल की फील्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल और दीगर ममालिक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे काफ़ी हद तक हमें पीछे दिखाई देती हैं। लेकिन पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर यकीनन हमें सहूलियात जो हैं इंटरनेशनली देखने को नज़र आती हैं। मुझे ये बताइएगा, जैसे कि ये पेशेंट है, अमूमन जब कोई भी स्टूडेंट आता है और यहाँ पर यकीनन हमारे पाकिस्तान में बहुत से किस्म
किस्म की बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही होती हैं। तो बिलखुसूस इन डमीज़ पे कौन कौन से पेशेंट्स के लिए जो है यहाँ पर री इनैक्टमेंट करके दिखाया जाता है? तो बेसिकली जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसके जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी एक तरह से सिम्टम्स होते हैं जो रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो ये एक तरह से एडवांस सिमुलेटर है, एक तरह से एडवांस रोबोट है। तो ये सारी बीमारियां, सारे सिम्टम्स, सारे वाइटल्स एक तरह से रेप्लिकेट कर सकता है। अगर आप देखें यहाँ इसके अभी इस वक्त लाइव वाइटल्स चल रहे हैं, तो ये भी एक नॉर्मल वाइटल्स हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको चेंज करके इसको क्रैश कर सकते हैं, हम इसके वाइटल्स गिरा सकते हैं, इसकी कंडीशन डिटोरिएट कर सकते हैं। इसकी कंडीशन डिटोरिएट हो जाएगी, इसकी हम लोग एक तरह से हार्ट से लेके, लंग से लेके, आँखों से लेके सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली। अच्छा, जैसे एक जिंदा इंसान के अंदर खून दौड़ रहा होता है, तो इसके अंदर वही सिचुएशन हमें देखने को नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसके अंदर देखें तो ये इसकी जो पल्स है वो पैल्पेट भी कर रही होगी, आप उसको उसकी नब्ज आपको आप हाथ लगाएंगे और आपको फील होगा। अगर आप उसको देखेंगे तो अगर आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे तो एक बैक फ्लो आता है, खून वापसी आता है इंजेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर खून भी निकलेगा। और ये इतना एडवांस है कि अगर एक चीज़ होती है शुगर, तो शुगर टेस्ट करने के लिए जो आप प्रिक करते हैं, हल्का सा आप सुई लगा के खून निकालते हैं और फिर उसको मशीन में डाल के चेक करते हैं, तो ये खून निकाल के दिखा सकता है। तो इसके अंदर असली खून भी दौड़ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन केस एंड सिनेरियो। तो हम लोग एक तरह से सिमुलेटेड ब्लड लेते हैं, वो डाल देते हैं जो असली खून के लिए रेप्लिकेट करके दिखा रहा होता है, वो सब कुछ उसके अंदर कर रहा होता है। बिल्कुल। वो तमाम अमली तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के वो स्टूडेंट जो कि एक ओरिजिनल ऑपरेशन थिएटर में जाना चाहते हैं या जाना भी क्या चाहते हैं, यकीनन किसी की ख्वाहिश तो नहीं होती, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल अमल के लिए आपके सामने कोई सिनेरियो पेश किया जाता है तो ये बिल्कुल रियलिटी पर मबनी है। और इन तमाम सिचुएशन से गुजर कर एक स्टूडेंट जो है आगा खान यूनिवर्सिटी का मेडिकल का वो तैयार होता है। जी। गवर्नर सिंध का तुलबा को एक और तोहफा, गवर्नर हाउस में जारी IT कोर्स को कराची यूनिवर्सिटी का अल्हाक मिल गया। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस IT कोर्स के तुलबा के लिए खुशखबरी, गवर्नर हाउस IT कोर्स को कराची यूनिवर्सिटी से इल्हाक मिल गया। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी ने बताया कि गवर्नर हाउस में जारी मुफ्त मेटा कोर्स वेब 3 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1 साल कोर्स का सर्टिफिकेट जामिया कराची जारी करेगी। और उसके अलावा सिंध के 6 अजला के अंदर इसी तरह से यही सेटअप, जिसमें जिस तरह यहाँ आप देखते हो चारों तरफ कंप्यूटर लैब लगी हुई है और कोर्सेज होंगे, डिप्लोमा होगा। अच्छी खबर यह है कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ हमने बातचीत कर ली है, तो जो आप डिप्लोमा पूरे साल का करेंगे उसका सर्टिफिकेट जो है आपको कराची यूनिवर्सिटी से मिलेगा। कोर्स को इल्हाक मिलने की खुशी में तुलबा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तालिब इल्मों ने IT कोर्स को इल्हाक मिलने की खुशी पर इत्मीनान का इजहार किया और गवर्नर सिंध को दुआएं दी। बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा कोर्स जा रहा है। इसके साथ अब जो हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा कराची यूनिवर्सिटी से, उससे हमें आगे करियर में बहुत फ़ायदा होगा और एक वैल्यू ऐड हो जाएगी इस कोर्स में। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव मिला है कि विदाउट फीस हम लोगों को इतने अच्छे AC माहौल में इतने अच्छे सर पढ़ा रहे हैं, तो ये है कि हम थैंक्सफुल हैं और ऐसा और होना चाहिए। इंशाल्लाह यहाँ से काम करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा और मतलब अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। काफ़ी बच्चे इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो कुछ सीख सकें और कुछ आगे बढ़ सकें। इंशाल्लाह ताला हम सब मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान में जैसे IT का जो है नाम होगा इंशाल्लाह ताला। तालिब इल्मों ने मजीद कहा कि गवर्नर सिंध की क़यादत में हमारे उस्ताद दानियाल नागोरी की बेहतरीन रहनुमाई हासिल है, जबकि सर ज़िया हसन से सीखने का मौका मिलना बहुत खुश नसीबी की बात है। कैमरामैन मोहम्मद मन्नान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।